हेलो। सो टुडे ऑन दिस पॉडकास्ट आज हमारे साथ है पूर्वी जवेरी। सो वो विच इज़ टिपिकली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द साउथ बॉम्बे गर्ल। शी इज़ अ सोबो गर्ल, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। बट ठीक है, चलिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो बहुत लोग कर लेते हैं, मतलब लाखों हैं, शायद इंडिया में 3 1 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। द डिफरेंस इज दैट शी इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, द कन्वेंशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, मतलब जिसको अकाउंट्स ऑडिट टैक्स ही पढ़ाई में अच्छा लगता था। But the unconventional part is classical dance, numerology, graphology, occult sciences. She's been featured in Navbharat Times 100 plus programs. काफ़ी कुछ है, मतलब आइए समझते हैं फ्रॉम पूर्वी कि एग्जैक्टली वो करती क्या है, कैसे उसने ब्लेंड किया है। सो पूर्वी, जस्ट एक क्विक इंट्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू बीन डूइंग, क्या तुम्हारा बैकग्राउंड है, क्या हो। Sure, sir. First of all, I would like to thank you, sir, for giving me this opportunity to interact with everyone and share my experiences. I have done master degree and Arangetram in Bharatnatyam, and I have been trained in it since 9 years. And apart from that, I have pursued graphology, जिसको हम handwriting analysis बोलते हैं. And after graphology my interest was more towards learning more things, because when I learned graphology, and I actually did the analysis for people, and they found it very accurate, and they were amazed by the analysis. So that actually is the source of interest, and after that I learned many other things which come in occult sciences, for example numerology, even mobile number analysis, from your wristwatch how do you come to know about a person. So sir, when you hear about these things for the first time, they are very unique things, not many people have heard about it. So sometimes they come with the convention ki how is it possible that these things work for you. But sir, I will just like to say that when you learn something, एंड नॉट जस्ट लर्न, व्हेन यू लर्न इट फुल्ली, जब आपको पूरी चीज़ समझ में आती है, आई वुड सजेस्ट दैट तब आपको एक ओपिनियन फॉर्म करना चाहिए. एंड जस्ट बाय नेम यू शुड नॉट गो कि अरे इसमें क्या होगा, या फिर ये तो सुपरस्टिशन है. सो स्टार्टिंग से वैसा करो, वो आपका थॉट प्रोसेस नहीं रहना चाहिए. यू शुड ऑलवेज बी ओपन एंड लर्न फुल्ली. आपको पूरी चीज़ समझने के बाद सीखना चाहिए. एंड एज यू सेड आई हैव ऑल्सो डन माई सी ए. ओके। सो क्विकली एक बार समझते हैं सीए कैसे, वाई सीए। सीए कंप्लीट किया तुमने आई थिंक लास्ट ईयर नवंबर वाले टर्म में। तो यस सर. इतना क्रिएटिव साइड था, यू आर इनटू डांस, ग्राफोलॉजी, न्यूरोलॉजी, तो ये सीए कैसे हुआ? पापा का सपना? Okay. Parents ड्रीम, यस सर, दैट इज ट्रू. ऑल्सो सर, एक और चीज़ है कि आई हैड, मतलब पहले सी ए स्टार्ट हुआ था, लाइक आई हैड स्टार्टेड सी ए, एंड आफ्टर दैट, आफ्टर माई सी पी टी आई हैड लर्न ग्राफोलॉजी. And then after my CA inter exams, I got a lot of time to actually explore further. Plus the COVID lockdown, which gave me too many opportunities to take this on platforms like even Now Bharat Times and other big social events. So CA had started first, and why CA? So first thing is ki when you take up commerce, the thing is that any strong thing if you wish to do in commerce, something which is of concrete value, it is naturally CA. एंड एक और ऑनेस्ट रीजन तो ये है कि आफ्टर सी ए यू have a lot of scope, and you are kind of relaxed to do what you want to, like you always have a degree to have as a, like you will never be out of work. तो वो चीज़ एक है, एंड काफ़ी अच्छा स्कोप है. एंड रिकॉग्निशन भी बहुत है सीए को, कि मतलब अगर आपने सीए किया है तो एक लोगों का दृष्टिकोण होता है कि चलो यू डन समथिंग विच इज़ हाँ, एब्सोल्युटली, वर्दी. एब्सोल्युटली। So that was the reason for CA. And alongside all of these always kept me having enough work to do here also, and then that actually increases your productivity even when you are studying. That's what I believe. So yeah. तो आइए समझते हैं कि एग्जैक्टली लाइक डांस, ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एक एक करके समझाओ कि एग्जैक्टली अगर कोई इसको अपने जीवन में लेके आता है
So let's say on a creative side, on a health perspective, कैसे, how can this make an impact? Okay, so first I will like to talk about Bharatnatyam. So Bharatnatyam had started when I was very young. I was, I think, 6 years old or something, and my mom would just send me to those classes. So initially I was like, मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं करना है Bharatnatyam, but she would still somehow just send me there. She would push me कि जाओ, you have to do it. So it started like that, but eventually it was so important to me, like after when I was in 10th, तब मैंने जब आरंगेत्रम किया, एंड देन आफ्टर आई लुक एट इट टुडे, इट फील्स की वाओ, मतलब थैंक गॉड माय मॉम सेंट मी देयर एंड आई कुड लर्न इट. सो दैट्स द स्टोरी ऑफ भरतनाट्यम, हाउ इट हैज हेल्प्ड मी. इज बिकॉज एक तो फिजिकल फिटनेस रहती है हमेशा, एंड दूसरा, आप जब कोई भी एक डांस फॉर्म सीखते हो तो आप सिर्फ डांस ही नहीं सीख रहे हो, बट यू लर्न अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लाइक द नॉलेज ऑफ योर क्लासिकल ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म. यू गेट अ वेरी रिजुविनेटिंग साइड ऑल्सो, कि आप रिलैक्स कर सकते हो, आप उसमें अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हो. सो ऑलवेज अ गुड थिंग. So that is for Bharatnatyam. Coming to graphology, so the first time I had come to know about graphology is also because of my mom. Like someone had told her that आप इसको ग्राफोलॉजी सिखाओ, काफ़ी अच्छा रहेगा इसको, टू अंडरस्टैंड एनी पर्सन. हैंड राइटिंग से आप कैसे एक व्यक्ति के बारे में समझ सकते हो, आप कैसे उनको एनालाइज कर सकते हो, और कैसे आप अपने आप को भी समझ के यू कैन मेक चेंजेस इन योर ओन हैंड राइटिंग. You can understand the other person before dealing with him. सो ग्राफोलॉजी, पहले मुझे लगा कि हाउ कैन हैंड राइटिंग इवन टेल अबाउट अ पर्सन, बट देन व्हेन आई एक्चुअली लर्नड इट एंड आई enrolled in the course, I found it so mesmerizing, and I found it so value rich कि I felt कि I am going to take it ahead. Then I did analysis for a few people. I told them about कि अच्छा, आपके हैंडराइटिंग से डिड यू नो योर हेल्थ, क्या आपके इश्यूज के बारे में पता चल सकता है, आप रिस्क लेते हो नहीं लेते हो, आपकी क्या पर्सनैलिटी है, एंड एवरीथिंग फ्रॉम ए टू जेड, वेदर इट इज़ अबाउट योर हेल्थ, वेदर इट इज़ अबाउट योर रिलेशनशिप्स, सब कुछ आपकी हैंडराइटिंग से पता चल सकता है, सब कुछ. एंड when I gave the analysis, and after which they told me कि अच्छा चलो, you tell me what corrections I have to make, या क्या मैं इसमें improve करूँ. So that was a very good starting point for me in graphology, that is handwriting analysis. उसके बाद I went on to learn other things like कुछ drawing एग्जाम्पल बताओ analysis. इसमें पहले, Yes. एक बार इसके बारे में uh, थोड़ा एग्जाम्पल बताओ कि yes, क्या yes. हैंडराइटिंग में क्या डिस्टॉर्शन होगी, देखते क्या हैं. चेंज हो सकता ओके. या. सो जैसे फॉर एग्जांपल लेटर बी, अपन एक बहुत सिंपल एग्जांपल लेते हैं, लेटर बी. इफ यू राइट द लेटर बी, अगर कभी भी आपका बी नीचे से खुला है, इफ यू गो टू सी जस्ट बाय अ सिंपल लेटर, दैट इज, यू टेक फॉर एग्जांपल लेटर बी. नाउ बी भी कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे अब कुछ लोग ऐसे नीचे से ओपन रहता है लोगों का बी लिखते टाइम, इट इज है? यस. not completely touching, it's open from down. Okay. हम्म. So this, whenever we see a letter B which is not completely touching the stem, it's open. In लोगों के केस में, either in their family or in their personal health, we see that they have heart related some ailment. Okay, somebody from their family and immediate family, या तो खुद को या फिर उनके immediate family में, and it has a very very deep logical reason कि ऐसा क्यों होता है. And when I just look at that B for example and I tell them कि आपके इसमें ऐसा है, तो they say अरे आपको कैसे पता चला from the handwriting. So that is just about identifying. And then we tell them कि अगर आपके कोई भी लेटर्स ऐसे नीचे से अगर खुले हैं, मतलब इट इज नॉट कम्प्लीटली टचिंग द स्टेम, इट्स नॉट क्लोजिंग प्रॉपरली. जैसे लेटर ए भी कभी कभी लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि इट्स ओपन फ्रॉम डाउन. या अगर आप लोगोस भी देखोगे लोगों के, तो इट इज जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे टाटा का लेटर ए अगर आपने देखा होगा, सो इट डज नॉट हैव हम्म. दैट क्रॉस. सो इट्स जस्ट एज एन एग्जाम्पल, मतलब कभी भी आप ऐसे लेटर्स देखते हो जो नीचे से इट इज ओपन खुले फ्रॉम होंगे. डाउन इन handwriting, in handwriting, not in the logo, in the handwriting. So these people generally have, it shows a drainage in terms of health, and in terms of finances also. So that is when we explain them कि देखो आपके letters का कितना importance है.
ओके, सो फॉर एग्जांपल इवन टेकिंग अदर थिंग्स लाइक आपकी जैसे हैंडराइटिंग है, अगर आपको एक पेज दिया है सपोज, एंड कुछ लोग पेज में पूरा जैसे वी गिव अ ब्लैंक पेज टू टेक योर हैंडराइटिंग, एंड इफ यू आर नॉट राइटिंग, मतलब आपने बहुत स्पेस राइट मार्जिन में छोड़ी है, आपने नीचे बहुत मार्जिन छोड़ी है, सो व्हाट डज दैट मीन? जैसे अगर आपका जो पेज रहता है वो आपका डे रिप्रेजेंट करता है कि आप अपना डे किस तरीके से यूटिलाइज करते हैं. So if your margins are left, it means that you are missing out on a lot of opportunities, or you are not wisely using the resources. जैसे आपका समय है दिन का, तो कैसे यूज करते हो वो 24 घंटे आपके वो पेज पे रिप्रेजेंट होते हैं जब आप लिखते हो, तो कि कहाँ पे कितना स्पेस छोड़ा है, सो यू कम टू नो. नाउ फॉर एग्जाम्पल अगर मार्जिन की हम बात करते हैं, तो लेफ्ट मार्जिन ऑब्वियसली पीपल लीव दैट बिकॉज यू राइट आफ्टर लीविंग द लेफ्ट मार्जिन. बट अपार्ट फ्रॉम दैट आपका पेज का यूटिलिटी कैसा है? देन फॉर एग्जाम्पल इवन इन सिग्नेचर, सिग्नेचर में अगर आपका सिग्नेचर पीछे की तरफ आ रहा है, यू नो सम पीपल डोंट अंडरलाइन लेफ्ट टू राइट, इन सिग्नेचर दे अंडरलाइन पीछे की तरफ. So this shows that the person is going back on his decisions, not very committed. So like that we come to know about the personality. And more than this, आपको फिर हम करेक्शन बताते हैं कि चलो now you should sign your signature like this. And more than just changing your signature, you should have it in your mindset कि okay, I want to move ahead, this is the reason why I'm going behind on my decisions, or xyz whatever is the reading. सो वी एक्सप्लेन टू देम कि आपकी पर्सनैलिटी के बारे में हम ये रीडिंग इसके लिए दे रहे हैं क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग में ये चीज़ है. एंड इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम कंसिडर करते हैं जब हम किसी व्यक्ति को रीडिंग देते हैं. एंड दिस रीडिंग इज नॉट गोइंग टू टेल यू एनीथिंग अबाउट योर फ्यूचर. इट्स नॉट फ्यूचर ओरिएंटेड कि आपके फ्यूचर में ये होगा, आप का ऐसे होगा. इट्स नॉट एस्ट्रोलॉजी एंड इट्स नॉट इवन सुपरस्टिशन. इट्स वेरी वेरी लॉजिकल एंड वेरी वेरी साइंटिफिक. बहुत सादा एविडेंसेस के साथ बैक्ड है ये. एंड जब आप पूरा सीखते हो, नॉट जस्ट शॉर्ट्स या रील्स की तरह 2-3 मिनट में कुछ देख लिया, तो इट इज़ वेरी बेनिफिशियल. मुझे याद है आई हैड प्रैक्टिस ग्राफोलॉजी आज से 7-8 साल पहले. वो मुझे इंक्लाइन करने बोल रही थी कि सारा हैंड राइटिंग जो है आप अपना थोड़ा सा स्लैंट करके लिखिए, सो दैट योर थॉट बिकम्स फॉरवर्ड लुकिंग rather than going back. Okay, so in this, whenever we talk about slant, slant basically represents कि आपकी personality किस तरीके की है. If you have a straight slant, it means that you are a person who's very very practical and in control of your emotions. You don't express very fast. Okay, if your slant is forward, which is right slant, it means that हाँ. you are more expressive. You are more emotionally expressive. And if your अच्छा. slant is backward, it means that somehow you are not going to express very fast, you are going to withhold your emotions. Now when it comes to slant, whenever even we are giving suggestions, we do not give you suggestions where we tell you कि अच्छा now quickly you change your slant. We will explain कि slant का मतलब you can be emotionally controlled and you can still get your work done. So slant का जब हम बात करते हैं, तो always you should not immediately change your slant, बिकॉज स्लांट एक आपका मतलब आपको कैसे आप अपने आप को रखते हो, हाउ यू आर एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस कैन नॉट बी चेंज्ड like you know immediately with the change in slant. So whenever we are giving any kind of corrections, we tell them द रीजन एंड वॉट इज इम्प्लीमेंटेबल. मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए एंड उसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजनिंग होता है. बट वेन यू कम टू स्लांट, इट्स नॉट गोइंग टू मेक यू फॉरवर्ड लुकिंग जस्ट बाय ब्रिंगिंग इन द राइट स्लांट. सो जब चेंजेस भी हम सजेस्ट करते हैं, तो चेंजेस बहुत बाद में आता है. पहले तो आता है कि आप अपनी पर्सनालिटी को समझो. पहले आता है कि आप पूरा देखो ध्यान से कि आपको क्या हमने बताया है, क्या रीजनिंग है. एंड देन सम पीपल से कि हमारी हैंडराइटिंग हमेशा चेंज होती रहती है, मतलब हम जब छोटे थे तब अलग है, अब अलग है. तो इसमें कैसा रहता है कि हैंडराइटिंग आपकी भले चेंज हो रही है, आपको सैंपल आपका तब देना है जब
आप एकदम स्टेबल हो, काम हो, आपका पीस ऑफ माइंड है, एंड देन यू आर राइटिंग। सो इट शुड बी, कुछ कंडीशंस उसकी भी रहती है। तो अगर आप देखोगे कि हमारी सिर्फ हैंडराइटिंग हमेशा चेंज हो रही है, या हम सिर्फ स्लांट ऐसे चेंज कर ले, सो कोई भी सुनी सुनाई बात में से आपको चेंजेस नहीं करने चाहिए। एंड पूरा जो चीज़ है, मतलब फ्रॉम ए टू जेड, जब आपको हर चीज़ का नॉलेज हो, दैट टाइम you should form an opinion and you should implement things. Okay, interesting. Very, very fascinating. I think we should have a session separately for graphology. कमिंग टू न्यूमरोलॉजी, ये जो तुम मोबाइल फ़ोन का नंबर का एनालिसिस करते हो, जो अपने सिम कार्ड का नंबर का एनालिसिस, ये एग्जैक्टली क्या है? ये तो मैंने इनफैक्ट ग्राफोलॉजी तो काफ़ी बार सुना है, बिन हियरिंग इट ऑन एंड ऑफ, आई हैव प्रैक्टिस दैट फॉर क्वाइट सम टाइम। बट न्यूमरोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू फॉर एग्जांपल योर सेल फोन नंबर, दैट ये क्या होता है एग्जैक्टली? हाउ डज दिस गो अराउंड? Okay, so when we talk about numerology, mobile numerology जिसको हम बोलते हैं, that is related to a science called as numerology. Now, numerology is very very different from graphology. Numerology will also see, there are two three things that are required for when we talk about numerology per se. First is that you should be having the willingness and faith over numerology. When we talk about graphology, it is something that we can explain very logically कि आपका handwriting इस तरीके से है, आपका that is why it is a representation of your brain. But when we talk about numerology, numerology requires your faith and willingness on the science. अगर आप न्यूमरोलॉजी में फेथ या विलिंगनेस नहीं रखते हैं, तो आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि अरे मोबाइल नंबर से भी कुछ पता चलता है क्या। तो इट्स नॉट लाइक दैट। फर्स्ट इज योर फेथ, एंड सेकेंड इज मोबाइल नंबर के भी कुछ कंडीशंस हैं। जैसे इफ यू आर यूजिंग दैट नंबर फॉर अराउंड से मोर देन 6-7 years, then it is going to give you its reading will be correct. Because if when we talk about mobile number impacts you because you are using it since such a long time. Okay, so if you have just taken a number, it is not going to tell you anything about your analysis or any of your reading. So mobile number, first it is related, because it's related to numerology. First is your faith, and second thing is you have to be using that number for a long period of time. अगर आपके बहुत सारे numbers है, जैसे 3-4 numbers है, या अगर आपने अभी अभी number use करना चालू किया है, it's not going to tell you anything about your self. And whenever we even change the mobile number, like for example for my clients, I have changed people's mobile number. I have hundreds of feedbacks from handwriting signature, this that change, that they have seen results. So mobile number में ऐसा है कि first you have to match कि हाँ ये analysis बराबर है, and second is that you have to have faith. अगर आप starting से ही मन बना लोगे कि इससे तो कुछ नहीं होता है, तो definitely कुछ नहीं होगा. सो एक चीज़ बताओ, आज के डेट में तो लोग अपना मोबाइल जनरली नंबर लोगों को खुद का ही मुश्किल से याद होता है, अगर कोई और भी जब मिलाता है वो तो नंबर स्टोर्ड रहता है। सो इफ़ यू कंपेयर विथ लाइक नोकिया 1100 का ज़माना में जब हम एक्चुअली टाइप करते थे नंबर्स, तो फिर भी फ़र्क पड़ता है मोबाइल फ़ोन नंबर से। Because you are using it since a considerable period of time, and it becomes like your identity. जैसे अगर आपको मुझे डायल करना है, so whenever you are going to type in Purvi, so that number is always, it's that number is like my identity, that number is attached to me. So that is why it has an impact on you. अच्छा, एंड इन अदर वर्ड्स अदर देन मोबाइल नंबर और न्यूमरोलॉजी कैसे यूज़ हो सकता है? न्यूमरोलॉजी एक्चुअली आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपके बारे में बताता है। सो न्यूमरोलॉजी का मेन यूसेज इज फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ। देन ऑल्सो इट इज़ अबाउट योर नेम स्पेलिंग। जैसे अगर आप देखोगे कि काफ़ी सेलिब्रिटीज़ और काफ़ी पॉलिटिशियंस, अ लॉट ऑफ पीपल पुट दे मॉडिफाई देयर नेम स्पेलिंग। फॉर एग्जाम्पल हाँ, अगर आप देखोगे, तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भी कुछ लेटर्स, तारक में उल्टा में डबल ओ है। देन देर आर अ लॉट ऑफ हाँ। सेलिब्रिटीज जो अपने नेम स्पेलिंग को मॉडिफाई करते हैं। तो न्यूमरोलॉजी का ऐसा है कि वो नेम स्पेलिंग इसके लिए मॉडिफाई करते हैं बिकॉज दे वांट टू ब्रिंग इट ऑन अ गुड नंबर vibration. And it is believed that in numerology every letter has a number associated with it, and that is why your full name comes to one particular number. जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो टू सी लेटर पी, तो पी का नंबर है 8।
सो लाइक दैट PURVI पूरे लेटर्स का एक नंबर आता है विच इज़ योर नेम नंबर. सो वो एक अच्छे फेवरेबल नंबर पे लाने के लिए यू विल सी दैट पीपल मॉडिफाई नेम्स, एंड ऑफ कोर्स इट इज़ गिविंग पीपल रिजल्ट्स, इसके लिए इतने लोग उसको फॉलो करते हैं. न्यूमरोलॉजी में भी अगर आप देखोगे तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि एक लेटर ऐड करने से अगर नाम बदलता या अगर किस्मत बदलती तो फिर हर कोई कर लेता. बट इफ़ यू गो टू सी दैट उसमें भी काफ़ी लॉजिकली आपका नेम स्पेलिंग मॉडिफाई किया जाता है. एंड अगेन जिसको विश्वास है उसके लिए वो काम करता भी है. ओके, और जिसको विलिंगनेस है ही नहीं, जिसको फेथ है ही नहीं, उसके लिए कोई भी लेटर्स आप ऐड कर लो कुछ नहीं होगा. एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका हार्ड वर्क. अगर आप सोचते हो कि मैं नेम स्पेलिंग बदल लूँ और उससे मेरी किस्मत बदल जाए, ऐसा नहीं होगा. आपको हार्ड वर्क तो करना ही है, आपको मेहनत तो करनी है, बट जस्ट कि एक फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस हम जिसको बोलते हैं वो क्रिएट हो जाते हैं एंड उससे आपका लाइफ ईज आउट हो जाता है. बट हार्ड वर्क इज अ मस्ट, विदाउट दैट नथिंग विल वर्क एवर. So that is why. And also here I want to share one more thing. आप काफ़ी यूट्यूब पे वीडियोस देखोगे जो आधे अधूरे ज्ञान के बेसिस पे बहुत फेमस क्रिएटर्स का वो लोग न्यूमरोलॉजी को बैश करते हैं, एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट चीज़ें बोलते हैं. बट अगर आप देखोगे कि इट इज़ बेस्ड ऑन हाफ नॉलेज, और हाफ नॉलेज के बेसिस पे कोई भी चीज़ हो, इट इज़ ऑलवेज डेंजरस, इट इज़ ऑलवेज इनकरेक्ट. So always make sure that whenever you are learning about any science, you take complete understanding and then you form an opinion. And definitely जब इतने सारे लोग करते हैं तो it's not that they are foolish. Okay, so वो given है कि hard work भी है, ये भी है, and it works for you. ओके ओके, फैंटास्टिक. एंड अगर अपने समझे फाइनली जो ऑकल्ट साइंसेस है, ये एग्जैक्टली exactly इसका क्या लॉजिक है? ओके, अकल्ट साइंसेस ऐसे रहते हैं जिनमें आपको जैसे फॉर एग्जांपल वास्तु है, या अपना न्यूमरोलॉजी है, ऑल ऑफ दीज कम अंडर अकल्ट साइंसेस. तो अकल्ट साइंसेस का ऐसा रहता है कि दे आर, फॉर एग्जांपल इवन इफ यू गो टू सी इन एस्ट्रोलॉजी, so some people find it scientific, some people find a very logical reasoning, and others don't consider a valid basis for it. हालांकि एस्ट्रोलॉजी में भी होता है, बट ये सारी चीज़ें दे कम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ अकल्ट साइंसेस. सो इन वेरी सिंपल टर्म्स, इफ आई हैव टू एक्सप्लेन, it has a science behind it, there is a reasoning, but it requires your faith also. For example, अभी ग्राफोलॉजी अगर आप देखोगे, इट्स अ स्यूडो साइंस, इट्स नॉट एन अकल्ट साइंस, बिकॉज वहाँ पे आपका ब्रेन का मोटर मूवमेंट आपकी हैंडराइटिंग से शो होता है. सो ग्राफोलॉजी इज नॉट एन अकल्ट साइंस, बट एवरीथिंग एल्स, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है, ऑल ऑफ दोज आर अकल्ट साइंसेस. That is the primary difference. जैसे वास्तु का And कुछ एग्जांपल बताओ. फॉर एग्जांपल वास्तु में ऐसा होता है कि आप जब भी कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं अपने घर का या किसी प्लॉट का, तो उसमें आप देखते हैं कि कौन सी डायरेक्शन सबसे फेवरेबल है फॉर यू नो. फॉर एग्जांपल आपका स्टडी एरिया कहाँ होना चाहिए, आपका किचन कहाँ होना चाहिए. सो दोज थिंग्स कम इन द कंसिडरेशन ऑफ वास्तु. इट इज़ द साइंस ऑफ कंस्ट्रक्शन, कि आप कैसे कंस्ट्रक्शन के टाइम पे अपनी चीज़ों को प्लेस कर रहे हैं. एंड वो भी काफ़ी लॉजिकल होता है, बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन हाउ यू आर टेकिंग इट ऑल्सो. सो दैट इज वाई. जैसे मुझे थोड़ा सा बेसिक पता है, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट में पूजा घर होना चाहिए, यस यस एंड जी, करेक्ट. समथिंग लाइक दैट, राइट? यस यस, दैट इज वास्तु की कौन सी फैंटास्टिक. डायरेक्शन में क्या होना चाहिए वैसे. राइट. कई होता है, मतलब देयर आर सम ऑफिसेज दैट आई हैव सीन कि वो बिल्डिंग ही यस. वास्तु वाइज इतना अच्छा है, इतना फेवरेबल है कि उसमें जो भी ऑफिस लेता है वो बहुत अच्छा करता है. एंड यस. सम ऑफ देम सो आर डूम्ड, जैसे हम्म. ऐसा. सर इसमें ऐसा भी है कि आप जब तक कोई चीज़ अनुभव नहीं करते हो, तब तक आप उसके ऊपर कभी भी मतलब बोल नहीं सकते हो कि अदरवाइज यू विल ऑलवेज फाइंड अ प्री डिफाइंड नोशन कि अरे ये तो ऐसा ही है. जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं करोगे, जब तक आप देखोगे नहीं खुद कि ये होता है, तब तक यू विल नॉट बिलीव. तो ये सब चीज़ों में ऐसा है कि आप पहले खुद एक्सपीरियंस करो, फिर आप कोई भी अपना व्यू पॉइंट बनाओ. विदाउट एक्सपीरियंसिंग
you should not put your views, otherwise you will always see negativity only. So experience it, and you will definitely see results. Like for whoever I have worked with, it is among the top of the businessmen, with psychiatrists also, पॉलिटिशियंस ऑल्सो, जिनको भी मैंने कंसल्टेशन दिया है, दे कम विथ सो मच विलिंगनेस। एंड मुझे ऐसा लगता है कि यार इनका फेथ और इनका ये देखो, एंड जैसे हमारे लिए तो हमेशा काम करता है। सो अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस यू विल नॉट नो। तो पूर्वी, अब इसमें आगे तुम्हारा क्या प्लान्स है, मतलब न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, occult sciences? So I am working on it. I am taking events with people, and I teach people what graphology is. पूरा course जो है वो मैं सिखाती हूँ. So my plan is to expand it, and my aim is that I spread as much correct awareness and knowledge about it as much as is possible. कि आपको holistic ढंग से आपको समझ में आए, तो लोगों का व्यू पॉइंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है. So that's my aim. स्टूडेंट्स भी इसको यूज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल करियर यस, अच्छा यस। करने के लिए? फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का कैसा रहता है कि अगर आप स्पेसिफिकली रिजल्ट ओरिएंटेड देख रहे हो, तो हम कुछ चीज़ें उनमें बताते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ योर लेटर जी, सो कुछ लोग जी का जो एंड है वो इस तरफ उनका जाता है, इट इज़ नॉट गोइंग अपवर्ड्स। सो उसमें भी टेल देम कि सी दिस इज द रीजन वाई योर एफर्ट्स आर नॉट गोइंग टुवर्ड्स द करेक्ट डायरेक्शन। इफ आई वुड हैव अ विजुअल मैं आपको बता सकती है, तो दैट वुड हैव बीन वेरी क्लियर। हाँ, तुम्हारी फिंगर बट से समझ में आता है। हाँ। यस, ओके। सो लेटर जी का कैसा है कि मतलब लेटर जी है, लेटर वाई है, ऐसे लेटर्स का हम आइडेंटिफाई करके उनको बताते हैं कि देखो दिस इज द रीजन वाई वी आर गिविंग यू रीडिंग। सो वेदर इट इज एजुकेशन पर से और वेदर इट इज एनीथिंग एल्स इन योर लाइफ, आपका एटीट्यूड वो डिफाइन करता है। सो व्हेन यू मेक दीज करेक्शंस यू विल सी रिजल्ट्स। बट इट्स नॉट कि अगर आप ऐसे इस तरीके से लिखोगे तो ये एक गारंटी है कि यू विल क्लियर दिस एग्जाम और समथिंग, वैसा नहीं है। बट 100% यू सी इम्प्रूवमेंट इन योर बिहेवियर, इन योर थिंकिंग, एंड यस, सो इम्प्रूवमेंट इज और ऑलवेज देयर। आजकल जो डिप्रेशन एंजाइटी काफ़ी कॉमन हो गया है पोस्ट कोविड वर्ल्ड में, आई थिंक 1 in 3 पीपल हैव समथिंग, तो उसके लिए क्या रिकमेंडेड होता हो? दैट ऑल्सो वी कैन सी फ्रॉम योर हैंड राइटिंग। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका डिसेंडिंग बेस लाइन है, अगर आप लिख रहे हो जब इट्स गोइंग इन द डिसेंडिंग मैनर, और देर आर अदर फ्यू थिंग्स ऑल्सो दैट विथ एवरीथिंग वी कंक्लूड कि मतलब दिस पर्सन इज नॉट इन अ वेरी गुड एलिवेटेड मूड। सो उसके लिए भी सजेस्ट सम पैटर्न्स दैट यू शुड फॉलो इन योर हैंड राइटिंग। बट स्पेसिफिकली अगर हम उस तरीके का एक टेंडेंसी की बात करते हैं where you are depressed, or where you are not in a very good state of mind, वहाँ पे हैंडराइटिंग के साथ भी बहुत सारी दूसरी चीज़ें मैटर करती है। सो होलिस्टिक व्यू पॉइंट के लिए आपका सब कुछ कंसिडर होगा, मतलब हैंडराइटिंग, द अदर एक्टिविटीज दैट यू डू। सो वो सब कुछ एक होलिस्टिकली हम फिर कंक्लूड कर सकते हैं। बट जहाँ तक क्वेश्चन है कि क्या हैंडराइटिंग हमको इसमें इम्प्रूवमेंट दिखा सकती है, सो द आंसर इज 100% yes. And again, if you've experienced it, so yeah, definitely it works. फैंटास्टिक पूर्वी। आई थिंक इट्स बीन अ वेरी इंफॉर्मेटिव सेशन, काफ़ी कुछ सीखने मिला है। नाउ आई एम फेयरली क्यूरियस टू इम्प्लीमेंट दिस इन माई लाइफ, तो मैं आई विल कनेक्ट विद यू Of आउट course, आफ्टर sir. दिस सेशन टू अंडरस्टैंड कि कैसे होता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन दिस शो एंड शेयरिंग योर व्यू। एंड पूर्वी को आप लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड डू यू हैव सम वेबसाइट ऑफ योर्स एंड ऑल? You can contact on a number actually. Website, I am still in the process of doing it. I can share my number. Should I say the number, or I I can will put it leave on it in the chat? descriptions of the. Okay, done. I'll Yes. leave it in the description box. Yeah, Sure. take it Yeah. from you and leave it in the Yes. description. All right. Thank you. Thank you so much, everyone, for watching this show.